हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्र मैथमेटिक्स चैनल। आज जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। उसमें ए फेयर डाइज रोल्ड, कंसिडर इवेंट्स। ये जो इवेंट्स है 1 3 5, f is equal to 2 3 and g is equal to 2 3 4 5. Find P of E by F and P of F by E. Second, P of E by G and P of G by E. And third one, P of E union F by G and P of E intersection F by G. So already जो एक्सपेरिमेंट है वो डाइकोटोमी ट्रांसफर है, इवेंट्स ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है। सो उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नेक्स्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो फार्मूला है वो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट है P of E by F। सो उसका पहले हम क्या करेंगे, ओ इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। E is equal to 1 3 5, then probability of E, P of E is equal to 3 by 6, F is equal to 2 3, then P of F is equal to 2 by 6, then E intersection F is equal to, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, दैट इज P of E intersection F by 1 by 6. Now we have to find the P of E by F and P of F by E. P of F by E is equal to P of E intersection F divided by P of F. E intersection F है 1 by 6 divided by P of F है 2 by 6, 6 get cancelled, that is 1 by 2. Okay, next second, that is P of F by E, that is also P of E intersection F divided by P of E. E intersection F is 1 by 6 divided by P of E is 3 by 6, that is 1 by 3. Next third one, we have to find P of E by G. So next event G, that is third one. G क्या है, G is equal to जो इवेंट्स है 2 3 4 5, नेक्स्ट P of G is equal to 4 by 6, right? Next E intersection G, E में and G में जो कॉमन है that is 3 and 5. So then P of E intersection G is equal to 2 by 6. Next we have to find P of E by G is equal to P of E intersection G divided by P of G. E intersection G is 2 by 6 divided by P of G. P of G already हम फाइंड किया 4 by 6, 6 get cancelled, 2 by 4, 1 by. Next P of G by E, right? So this is equal to, now intersection तो same, P of E intersection G divided by here P of E जो given है E है वो डिनोमिनेटर में हो जाता है। So P of E intersection G क्या है, that is 2 by 6, 2 by 6 divided by P of E. P of E already हम फाइंड किया, that is 3 by 6 is equal to 2 by 3. Okay, next we have to find third one, that is P of E union F by Z, right? So ये फार्मूला ये हो जाता स्टूडेंट्स। सो देखिए दिस इज इक्वल टू P of E union F intersection Z divided by P of G. Okay, are you understand? P of E union F by Z is equal to P of E union F जो बाहर है तो इंटरसेक्शन by Z जो गिवन है, सो ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा P of G. So this is equal to P of E union F क्या है, देखो P of E union F intersection Z. So this is equal to E union F, दोनों यूनियन करो, so that is 1
3 5 1 3 5 sorry 2 also 1 2 3 5 इंटरसेक्शन G क्या है 2 3 4 5 2 3 4 5 नाउ कॉमन इज दैट इज दोनों में कॉमन क्या है 2 3 and 5 so that is 2 3 5 this is equal to then the probability will be 3 by 6 right so next directly we have to substitute here intersection of divided by that is 3 by 6 divided by P of G already have to find here that is 4 by 6 this is equal to 3 by 4 ओके स्टूडेंट्स सो आप लोग एक कीजिए सॉरी दिस वन सेम थिंग वी हैव टू डू हियर इंटरसेक्शन जो यूनियन किए थे आप लोग क्या करना है इंटरसेक्शन करना है दोनों का किसमें यूनियन था ये इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन क्या हो जाता दैट इज P ऑफ E इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन क्या है E एंड F में 3 है नेक्स्ट फिर क्या करना G से इंटरसेक्शन करना सो फार्मूला हो जाता P of E intersection F by Z is equal to P of E intersection F intersection G divided by P of G ठीक है आप लोग यू कैन डू होमवर्क सो आप लोग कीजिए इसमें सब्स्टिट्यूट करिए बस E intersection F करो नेक्स्ट इंटरसेक्शन G से करो जो आ जाता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालो नेक्स्ट डिनोमिनेटर B G ऑलरेडी हम फाइंड किए P of G 4 by 6 ओके प्लीज फॉलो करिए देखिए नेक्स्ट वन assume that each born child is equally likely to be a boy or girl if a family has 2 children what is the conditional probability that both are girls given that the youngest is a girl at least one girl तो एक क्वेश्चन हम एग्जांपल प्रॉब्लम में किया देखिए सेम है सो हियर व्हेन द गर्ल इज यंगेस्ट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स वन इज ए गर्ल देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द गर्ल्स सो जो फाइंड आउट जो करना इवेंट्स एक ही है सो गिवन जो इवेंट्स है वो 2 इवेंट्स है राइट सो अलग अलग है गिवन इवेंट्स का सो इवेंट्स ऑलरेडी रिप्रेजेंट किए तो उसका प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो उसका पहले हम क्या करना उसका सैंपल स्पेस निकालेंगे सो एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो उसका पॉसिबिलिटी ये हो जाता है दोनों भाई हो सकता है नहीं तो फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल सेकंड बॉय नहीं तो दोनों गर्ल हो सकता है तो वही पॉसिबिलिटीज हो जाता है ओके देन उसके साथ उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे S is equal to BB both are boys फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय नहीं तो दोनों गर्ल ओके नाउ दिस n of S is equal to 4 so here first event है इसको हम A event के कंसीडर करेंगे that is we have to find the both are girls both the girls means जो इवेंट हो जाता है A is equal to GG then P of A is equal to 1 by 4 now so first one that is the youngest is a girl so उसका हम B इवेंट मानेंगे B is equal to youngest जो है वो गर्ल है मतलब छोटी सेकेंड देखिए बी सी ये मतलब ये दोनों हो जाता है फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल इधर एडजस्ट है फर्स्ट भी गर्ल है सेकंड भी गर्ल है तो ये वे भी हो जाता है सो बी इज इक्वल टू जी बी सी एंड जी सी देन पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 by 6 sorry 2 by 4 नेक्स्ट ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दोनों में कॉमन गर्ल हो जाता है जी जी then P of A intersection B in B that is 1 by 4 now P of A by B is equal to P of A intersection B divided by P of B so here
P of A intersection B is 1 by 4 divided by P of B is 2 by 4. 4 can cancel, that is 1 by 2. Now second one, so जो ये इवेंट गिवन है इसको हम C बोल के कंसीडर करेंगे. C is the event at least one is a girl, right? So C is equal to at least one का मतलब ये हो जाता है कम से कम one girl, maximum बोले तो 2 because the family has only 2 children. one girl हो सकता नहीं तो दोनों गर्ल्स होता, मतलब कंडीशन ये है मस्ट शुड बी one girl होना चाहिए. तो वो ये हो जाता BG GB GG. So at least one girl or two girl, right? Then P of C is equal to, that is 3 by 6, sorry 3 by 4. Possibility favorable ones जो है वो 3 है, total number of possible outcomes है वो 4 है. Now अभी जो ये probability फाइंड आउट करना, when the at least one girl है तो what is the probability at both the girls, that is A, right? So A is same है ये दोनों क्वेश्चन के लिए, right? So ये जो इवेंट्स है that is both are girls, so that is A intersection में B हो जाता, sorry C हो जाता, that is GG. Then P of A intersection C is equal to 1 by 4. Now P of A by C is equal to P of A intersection C divided by P of C. This is equal to 1 by 4 divided by P of C is 3 by 4. That is 1 by 3. Okay? Please pause the video now. Okay, next one. An instructor has a question bank. A question bank है, वो question में 300 true false, easy true false questions, 200 difficult true false questions, and 500 easy multiple choice questions, and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from a question bank, what is the probability that it will be a easy question? What is the probability? Easy question का probability क्या है? When the question is multiple choice question. Easy question. जो find out करना है easy question, तो given है वो multiple choice question. So first we have to find total how many multiple choice question, how many true false question, easy question कितने हैं, and MCQ question कितने हैं. उसके लिए वो एक simple table बना के देखिए. Here true false question and MCQ. Here total, easy and here difficult, right? So देखिए, an instructor has a question bank consisting 300 easy true false question. देखो, 300 easy true false question and 200 difficult true false question. Same thing, 500 easy multiple choice question. And 400 difficult question. Right? Now here, the total question will be, total easy question is 800 and total difficult question will be 600. Then total true false question will be 500. Total MCQ question is 900. Then a total question, जो question bank में question है total 1400 questions, right? So here now we have to find the easy questions. Let E जो events है तो हम इसको मानेंगे that is easy question. Easy question. So the probability of easy question P of E is equal to, easy question कितने देखिए, that is 800 is equal to 1400. थोड़ा ये टेबल में तो सिंपल हो जाएगा. 800 easy question, ये जो ये 800 easy questions, total 1400, and F जो इवेंट है that is multiple choice question MCQ.
देन P of F is equal to मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने टोटल 900 टोटल 900 so here 900 divided by 1400 and easy question and multiple choice question that is E intersection F और क्वेश्चन इजी भी होना चाहिए then that is a multiple choice question then that is क्या है 500 right that's why I is underlined like that easy question है then multiple choice है दोनों में क्या है 500 divided by total 1400 now P of E by F is equal to P of E intersection F divided by P of F तो E intersection F कितने 500 divided by 1400 whole divided by P of F is 900 divided by 1400 1400 1400 get cancel 500 divided by 900 0 0 get cancel that is 5 by 2 okay please solve करके बताओ देखो नेक्स्ट एग्जांपल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिए गिवन दैट इधर गिवन पहले दिए एक बार कैसे हो जाता गिवन लास्ट में रहता जो फाइंड करने के बाद फर्स्ट में रहता इधर थोड़ा चेंज है गिवन फर्स्ट दिए गिवन जो इवेंट है गिवन दैट द टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different two dice are different find the probability of the event the sum of the number is 4 दोनों नंबर को ऐड करें तो 4 आना चाहिए सो हियर जो एक्सपेरिमेंट जो चल रही है वो हम डाइस को 2 पर टॉस करें सो डाइस को 2 पर टॉस करें मतलब हमारा सैंपल स्पेस हो जाता 36 सो आपको मालूम है कैसे लिखना बोल के डायरेक्ट मत लिखो टाइम ज्यादा चुका क्योंकि विदाउट सैंपल स्पेस हमारे को इवेंट्स मालूम है राइट इवेंट्स कैसे बोल के मालूम है 1 1 2 2 3 3 1,6 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 so on 6 1 up to 6,6 राइट सो सेम थिंग सो जस्ट आपको मैं ये लिख रही सिंपल 1,1 up to 6,6 तक हमारा जो इवेंट है दैट इज n of s is equal to 36 है अब इवेंट जो है फर्स्ट इवेंट ई जो फाइंड आउट जो कर रहे हैं वो इवेंट्स का हम ई मान रहे थे याद रखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर इज 4 सम ऑफ द नंबर इज 4 राइट सो इवेंट कैसे लिखा देखिए दोनों नंबर को फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस तो नंबर को ऐड करें तो हमको 4 आना चाहिए 1,3 हो जाता है 3,1 हो जाता है 2,2 हो जाता है और ये सैंपल में है देखिए 1 plus 3 4 3 plus 1 4 2,2 4 सो सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत क्या है सो P of E is equal to 3 by 36 and next E जो इवेंट्स है that is F A two dice are different the number appearing two dice is different का मतलब सेम नहीं आना चाहिए लाइक 1,3 3,1 डबल सेम नहीं आना 2 2 सेम नहीं आना बोले तो देखिए टोटल हमारा सैंपल स्पेस है 36 उसमें 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 राइट दीज 6 आर द सेम नंबर्स अब ये टोटल 36 में 6 लिखने के लिए तो कितना हो जाता है 30 हो जाता है सो हमारा P F जो इवेंट्स है वो डिफरेंस कितने 30 है राइट वो 30 लिखने का जरूरत नहीं P of F is equal to कितना 30 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल कितने 36 अब इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F is equal to कॉमन जो F में है एंड E में है E में जो इवेंट्स है 1 3 3 1 एंड ये तो सेम है मतलब डबलेट्स है 1,2,2 सो टोटल जैसा हमारा F में है वो डिफरेंस है सेम नहीं होना चाहिए राइट सो टोटल कॉमन क्या हो जाता है ये दो ही हो जाता है सो दैट इज 1,3 3,1 ये टू इवेंट्स ये 30 में भी हो जाता है राइट सो दैट्स व्हाई दिस इंटरसेक्शन
So P of E intersection E of is equal to, that is 2/36. Now P of E by F is equal to P of E intersection E of divided by P of E of E intersection 2/36 divided by 30/36. That is 2/30 is equal to 1/50. 2 1 जा 2 1 जा 2 5. Okay, this form is written. Okay, next one. This is question number 15. 13.1 का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है एंड 2 more questions are multiple choice, only 2, not more. एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. सो जो ये प्रॉब्लम है जैसा प्रीवियस किया था वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है. डिफरेंट का मतलब क्या है? डाई एंड कॉइन को साथ में हम टॉस कर रहे हैं. तो प्रीवियस हम कैसे करते थे? सेपरेट एक डाई को टॉस करते थे, नहीं तो एक कॉइन को करते थे, राइट. जैसे प्रॉब्लम एक हम एग्जांपल में किए थे. अब जो ये प्रॉब्लम में देखेंगे तो इसके ज्यादा हम क्या करना, ट्री डायग्राम बना के सैंपल स्पेस निकालना, तो वेरी सिंपल हो जाता है, राइट. देखिए कंसिडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाई. हम एक डाई को टॉस कर रहे हैं. डाई को टॉस करने के बाद इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 और 6 आए तो थ्रो द डाई अगेन, तो डाई को और साथ में टॉस करें. इफ एनी अदर नंबर कम्स, एनी अदर नंबर्स मतलब 1 2 4 5 ये नंबर आए तो उसके साथ हम क्या करें? कॉइन को टॉस करें. टॉस ए कॉइन. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो फाइंड आउट करना. द कॉइन शोज ए टाइप गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज एज 3. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा हम ये एक्सरसाइज स्टडी करें टोटली बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब आपका माइंड में ये याद रखिए, जो एक इवेंट्स गिवन रहता, जो एक इवेंट्स फाइंड आउट करने का रहता, कंडीशन मतलब कंडीशन रहता, याद रखिए. जैसा क्वेश्चन में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो भी आप लोग फाइंड आउट करना बेस्ड ऑन दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल के, ठीक है. तो देखिएगा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो भी हम इसको मानेंगे फाइंड, जो फाइंड आउट करने का रहता वो क्या है? ए कॉइन शोज 10 गिवन जो है एटलीस्ट 1 डाई शोज 3 बोल के. तो अब लोग थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाता है, ये क्या है कॉइन और डाई बोल के. तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे. फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? डाई को टॉस कर रहे हैं. डाई को टॉस करने के बाद हमारा पॉसिबिलिटी आ जाता 6. 1 2 3 4 5 6. ये हमारा पॉसिबिलिटी. व्हेन डाई को टॉस करने के बाद ये हमारा पॉसिबिलिटी. अगेन इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 एंड 6. व्हेन डाई को टॉस करने के बाद 3 एंड 6 आए तो उसके साथ फिर हम क्या करें? डाई को टॉस करें. तो अब क्या हो जाता है इसका पॉसिबिलिटी? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. ये हमारा पॉसिबिलिटी हो जाता है. या सेम ये भी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, राइट. एंड अदर नंबर्स कम्स अप, दूसरा नंबर आए तो उसके साथ हम क्या करें? कॉइन को टॉस करें. तो कॉइन ए पॉसिबिलिटी 1h 1 10, 2h 2 10, 4h 4 10, 5h 5 10. ओके, सो दीज आर द सैंपल स्पेस. अब साथ में लिखेंगे, देखो. सो 1h 1 10, नेक्स्ट 2h 2 10, 4h 4 10,
नेक्स्ट 5h 5t, देन 6 का 3 का 1 3 का 2 लिखिए, 3 का 1 3 का 2 3 का 3 3 का 5 3 का 6 6 का 1 6 का 2 6 का 3 6 का 4 6 का 5 6 का 6, राइट। सो दीज आर द सैंपल स्पेस। देखो डार्क हम लिखने के लिए कंफ्यूजन है तो ऐसा ट्री डायग्राम बना के लिखना बहुत सिंपल में हो जाता। अब मैं क्यों ये क्वेश्चन डिफरेंट है बोले तो थोड़ा ये इक्वली लाइकली नहीं है ना, तो कोई नहीं साथ में और डाई में है, क्योंकि अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। अब ये 2 10 ये आने का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाता है, 2 आने का 1/6 है। अब डाई को टॉस करने के बाद 2 आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6 इनटू एच टी आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉइन को टॉस करने के बाद 1/2, तो ये प्रोबेबिलिटी हो रहा है 1/12, राइट। अब देखो ये 3, 1 है। अब 3, 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, वो 3 आने का 1/6 इनटू 1/6 दैट इज 1/36। दोनों क्या है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रही है, डिफरेंट। सो दैट इज दिस इज नॉट ए इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी। सो इसको सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट जो ई इवेंट है दैट इज ए कॉइन शोज टेल। सो ई इज इक्वल टू टेल आने का क्या है, देखो 1t 2t 5t 4t और कुछ टेल 1t 2t 4t 5t, that's it. So this is equal to, अब देखो इधर डोंट राइट 4 divided by 20, 4/20 नहीं लिखना, कैसे लिखना देखो, P of E is equal to, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12, आपको मैं अभी बताता हूँ 1/12 plus 1/12 plus 1/12 plus 1/12 is equal to 4/12, 4/12। नेक्स्ट F इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज P, right? So F is equal to 3-1 3-2 3-3, एटलीस्ट 1 का हो सकता है, दोनों का हो सकता है, 3-4 3-5 3-6 and 6 का 3। So here P of F is equal to, so here also ये सारे का सारे इसका भी 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 7/36, right? So this is equal to 1/36 plus 1/36 plus is equal to 7/36. Now P of E by F is equal to, sorry, intersection E intersection F is equal to, दोनों में कॉमन क्या है 1t 2t 3t 4t, so totally the tail है नहीं, right? So directly intersection will be empty and probability will be 0, याद रखो। तो जब intersection करते हो there is no common and probability will be 0, then P of E by F is equal to P of E intersection F divided by P of F intersection will be 0 divided by P of F क्या है 7/36 is equal to 0, 0 divided by anything is 0, right? So please solve the video note down. Okay, so देखिए students, these two questions are multiple choice question है 13.1 में, you can expect this question on CT, कर्नाटक CT में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ये तो एनुअल एग्जाम में नहीं पूछते बोल के, नहीं है। सो वेरी सिंपल है, इफ P of A is equal to 1/2, P of B is equal to 0 है, then P of A by Z is
ऑप्शन है 0, 1/2, नॉट डिफाइंड एंड 1 है। सो थोड़ा आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद रहे तो बस, क्योंकि P ऑफ A बाई B फार्मूला क्या हो जाता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B, ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब P ऑफ B 0 है, 0 डिवाइडेड है बोले तो कांस्टेंट वो वैल्यू क्या है, नॉट डिफरेंट है। सो दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए P of A by B is equal to P of A intersection B divided by P of B. So this is equal to P of A by B divided by 0 is equal to not defined. Clear? Next, third. If A and B are even such that P of A by B is equal to P of B by A, then A is a subset of B हो जाता है, B is not equal to B. Sorry, A is not equal to B and B is not equal to B. B is equal to A equal to B. C A intersection B is phi. P of A is equal to P of B. So इसके लिए क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हम लिखेंगे, P of A by B is equal to P of B by A. ये फॉर्मूला P of A intersection B divided by P of B is equal to P of A intersection B divided by P of A, दोनों इक्वल है। Then P of A is equal to P of B. So that is question number, sorry, option D is the right answer. So here we are completed, that is exercise 13.1. next देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट बोल के आ जाता है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हो और 2 मार्क्स में भी पूछ सकते, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन एंड थैंक यू।